Good morning, class 2. I am your science ma'am. As I taught you this chapter earlier, the name of the chapter is Plant Life. As you all are able to watch this exercise on your desktop, today we will complete the exercise of this chapter. Before starting this, let me convince you the question. If you understand the question well, you can make the answer easily. So, let's start. As you all are able to watch the exercise, the first is tick the correct option. In this first para, we are getting multiple type question, and you will get 4 option. Which is correct, you will tick the correct option. And the second is filling the blanks with words from the box. And we are getting the blanks. We will have to fill these blanks with the help of these words. And number C, give one function of each of the following. You will have to write the function of these words. And number D, we are getting the pictures and we are getting the words here, and you will have to match this with the pictures. And number E, answer the following questions. What is tree? Give one example. Name 3 shrubs. What is photosynthesis? What are the 3 things required for photosynthesis? Where do creepers grow? Why do most birds build nests on the trees? So, a blank lives for many years. I will use first and second language. A lives for many years. In the first para, in the first line, we are getting after that blank live for many years. There are 4 options. The first is tree, and the second is herb, and the third is creeper, and the fourth is climber. You will tell which plants live for many years. There are 4 plants. There are 4 types of plant. The first is tree, second is herb, third is creeper, and the fourth is climber. ए कौन बहुत सालों तक रहता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. कौन सा पौधा बहुत सालों तक रहता है? A tree live for many years. एक पेड़ बहुत सालों तक रहता है. नंबर सेकेंड, A blank transports water to the plant. There are 4 options: root, stem, flower, and seed. Which part of the plant transport water? Which part of the plant transport water to the plant? पौधा का कौन सा हिस्सा पौधे के लिए पानी ढोता है? रूट यानी कि जड़, सेकेंड इज तना, थर्ड फूल या शीड. स्टीम ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द प्लांट. तना पौधे के लिए पानी ढोता है. एंड द थर्ड इज ब्लैंक हैज़ अ वेरी वीक स्टीम. Which plant has very weak stem? Leaf, climber, shrub, tree. किसका बहुत ही कमज़ोर तना होता है? पत्ती का, क्लाइंबर यानी कि चढ़ाईदार पौधे उनका, या शब्द मिस होता है झाड़ियों, ट्री यानी कि पेड़. A climber has a very weak stem. एक क्लाइंबर का तना बहुत ही कमज़ोर होता है. नंबर 4, blank is an example of a shrub. There are 4 options: नीम, मिंट, रोज़, वाटरमेलन. नीम, मिंट यानी कि पुदीना, रोज़ गुलाब, वाटरमेलन तरबूज. As you all know, rose is an example of a shrub. गुलाब क्या है? झाड़ीदार पौधा का एक उदाहरण है. एंड बी नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, उस खाली जगह को बॉक्स में जो वर्ड है उसकी मदद से क्या करना है, उसको फिल करना है. तो ब्लैंक इज़ अ बुशी प्लांट. यहाँ पे क्या होगा? शर्ब इज़ अ बुशी प्लांट. शर्ब मीन्स होता है झाड़ियाँ. झाड़ियाँ क्या है? एक जंगली पौधा है. एंड नंबर सेकेंड, लीव फॉर अबाउट 1 ईयर. कौन 1 साल तक रहता है? हर्ब यानी कि जड़ी बूटी का लाइफ स्पेन कितना होता है? सिर्फ 1 ईयर का.
फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट्स, फूल बढ़ते हैं फल के अंदर। 4 नंबर, द ब्लैंक प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, कौन सा यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है क्या चीज़ पूरे पौधों के लिए खाना तैयार करता है? लीफ क्या है? पत्तियाँ पूरे पौधों के लिए खाना तैयार करती है। बनियान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री, बनियान क्या है? एक पेड़ का उदाहरण है। नंबर सी, गिव वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का एक क्या लिखना है? फंक्शन यानी कि काम लिखना है। रूट का क्या काम है? रूट यानी कि जड़ का काम क्या है? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, जड़ पौधों को मजबूती से ज़मीन में पकड़ के रखता है। स्टीम का क्या फंक्शन है? द स्टीम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट अबव द ग्राउंड, तना पौधे को ज़मीन पर सीधे खड़े रहने में मदद करता है, यानी पकड़ के रखता है उसको। एंड थर्ड नंबर इज़ लीफ यानी कि पत्ती, लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, पत्ती पौधों के लिए खाना तैयार करती है। फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर अट्रैक्ट्स बीज एंड अदर इंसेक्ट, फूल मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है। फ्रूट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड, फल क्या करता है? बीजों की हिफाजत करता है। द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, बीज का क्या काम है? बीज एक नए पौधे में बढ़ जाता है, तब्दील हो जाता है। एंड डी नंबर में क्या दिया गया है? मैच द फॉलोइंग, वी आर गेटिंग द पिक्चर्स एंड देयर आर द वर्ड्स, यू विल हैव टू मैच विद द वर्ड्स। द फर्स्ट पिक्चर ऑफ अ ट्री, पहला पिक्चर हम लोग को किसका मिल रहा है? एक ट्री यानी कि पेड़ का। और दूसरा पिक्चर क्या किसका है? शब यानी कि झाड़ीदार पौधा का। एंड थर्ड नंबर में क्या है? वाटरमेलन एक क्या है? एग्जाम्पल है क्रीपर का। फोर्थ नंबर क्या है? क्लाइंबर। एंड फिफ्थ नंबर में जो पिक्चर दिया गया है वो किस चीज़ का है? वो हब का है, हब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट इज़ अ ट्री यानी कि पेड़ किसे कहते हैं? गिव वन एग्जाम्पल, उसका एक उदाहरण दीजिए। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, बड़े और मजबूत पौधे को हम लोग पेड़ कहते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या क्या हो गया? बनियान ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री। नेम 3 शब्स, 3 झाड़ीदार पौधों के नाम लिखिए। पहला क्या हो गया? हिबिस्कस, रोज एंड मेहंदी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं पानी, हवा, सूरज की रोशनी के मदद से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नंबर 4, व्हाट आर द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीज़ क्या क्या ज़रूरी है, लाभदायक है? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड सनलाइट, फोटोसिंथेसिस का जब ये प्रोसेस होगा तब उस वक्त सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज रॉ मटेरियल्स। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक खनिज पदार्थ के तौर पे फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तब उस वक्त ज़रूरत है, रिक्वायर यानी कि ज़रूरी है। नंबर 5, वेयर डू क्रीपर्स ग्रो? क्रीपर्स कहाँ बढ़ते हैं? क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स ज़मीन के साथ बढ़ते हैं। थिंक हार्ड, वाई डू मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज? द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज, क्यों बहुत सारी चिड़िया पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती है? इसका आंसर ये हो जाएगा, मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेइंग एग्स एंड रेजिंग यंग बर्ड्स, बट मैनी
Bull-nests high above the ground to isolate eggs and fledglings from ground level predators. इसका मतलब हो गया many species of bird. चिड़ियों की बहुत सारी जाति जो है पेड़ के ऊपर बुनियादी तौर पर घोंसला इसलिए बनाती है, उनका बुनियादी फंक्शन ये होता है लेइंग एग्स यानी अंडा देना पेड़ पर और अपने बच्चों को बड़ा करना। लेकिन बहुत सारी चिड़िया ज़मीन से ऊंचाई पर अपना घोंसला इसलिए तैयार करती है टू आइसोलेट एग्स, अंडों को अलग करने के लिए, एंड फ्लीजिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल प्रीडेटर्स यानी कि ज़मीन पे जितने शिकारी हैं उनसे उस बच्चों की हिफाजत करने के लिए वो लोग अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाती है। प्रोजेक्ट वर्क: कलेक्ट लीव्स ऑफ एनी 2 different plants, draw their outlines in the space given below and write their names. Also classify the leaf according to the size. We are getting some box. यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कुछ पत्तियों को इकट्ठा करना है अलग अलग पौधे का, उसको क्या करना है यहाँ पे लीफ में उसको वहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखना है, उसके बाद साइज़ लिखना है उसके बारे में। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, यू विल मेक इट बाय योर सेल्फ। Whatever I have taught you today, you will note it in your notebook. Okay, thank you.